और माफ़ी मांगना चाहूँगी, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा डिले हो गई है। मैं आपको मिलवाना चाहूँगी डिप्टी ऑफ हमारे डाइस का मिस्टर बाबा इंद्रप्रीत सिंह जी, स्पिरिचुअल हेड ऑफ सच कार्मिक मिशन। उन्हीं के साथ रमन सिंह जी, सीईओ ऑफ कैपिटल, सीईओ ऑफ गली मोहल्ला क्रिकेट लीग। अमन बांधी जी, डायरेक्टर ग्लोबल मिडास कैपिटल फंड। अनिल सिंह जी, डायरेक्टर प्राइड एकेडमी एंड एडवाइजर ऑफ GMCL। शशांक यादव जी, राम बिरला सोशल फाउंडेशन डायरेक्टर। एंड रिजवान खान जी, चेयरमैन ऑफ IFEP इंडो फ्रांस रजिस्टर्ड बाय पैरिस। और मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारी मुंबई कोर टीम का, सूरज पालकर जी, अर्शद तांबी, इम्तियाज शेख, मुनस अमीरानी, रौफ शेख, जावेद शेख, हरीश अंशाशेखर जी। और मैं सभी का स्वागत करती हूँ क्रिकेट कैप्टन और मीडिया का। थैंक यू। अब मैं हरमीत जी को कहूँगी कि आप इनका To today's press conference. Today we are gathered together for the launch of our Maharashtra specific sports league, which is a very big and a unique one. This is called Gali Mohalla Cricket League. This Gali Mohalla Cricket League, as you rightly understood, this is for the common and unprivileged and every child who's not been taken into consideration while the bigger leagues are happening. So this is for the youth and children, everyone. So this is gonna be on the Gali Mohalla level. It's gonna be the grassroots level we're gonna go have. Now I'll tell you about the structure. Now this league is not only a sports league. This is gonna be this is a movement we've started. So our children who are never been participated or not looked into the consideration for the bigger leagues, they will join us, and we will have approximately 500 teams from Maharashtra, that is Mumbai and nearby at the first phase. So सबसे पहले हमारा जो मैच रहेगा, I'll tell you about, और सबसे जो बड़ी बात है, there are 3-4 things which we have looked after for this conference and for the league. The number one is, this is gonna help the youth to drive their focus onto sports instead of any of the drugs. So this is gonna be moving away from addiction. This can be alcohol, it could be drugs, it could be any kind of addiction. They're gonna be focused on the sports league. Second, this is gonna be a very big movement for health, for making a national health movement. So all the youth is gonna be fit and fine. So that's gonna be a strong point for our national health. Second, third is gonna be the mental well-being for the youth, and the last is gonna be a talent hunt. That means they can prove their mettle in the leagues, and they can be the next stars of India, which can be, it can be Dhoni, it can be next Kapil Dev or Sunil Gavaskar, anything. So this is gonna be a platform, a national platform for them to come and prove their mettle. Now I'll just tell you about how we've designed the league. This is a league which is called, this is a turf league. So we will have 100, we've divided the 4 zones, 5 zones into, we will have 100 teams from every zone. So we have 4 zones in Maharashtra, which is Mumbai, Navi Mumbai, then we have Thane and Raigad. So these are the 4 zones, and we're expecting 500 total teams. Even more can happen. And every team will play around 10 matches. So we will have 5,000 matches going on for next couple of months till we go to the final stage. So this is how the thing is, and this is gonna be 10 overs each match, and this is gonna be a tennis ball match, and there will be no uniform. This is gonna be played by the common people. So we will have the way they have been playing in Gali Mohalla. This is gonna be the league which is gonna cater to that. Now we come to the prize. So we also have a prize money of 11 lakh rupees for the first team, and then the second runner-up is going to be 5 lakh. Not only this prize, we will have
proper training programs for the next year. So for these two teams, and not even these two teams, but we will have all the players which is going to perform during the matches. If they perform their worth, we will have their training programs for next 1 year in these academy. That is Pride Academy and the academy which we have already tied up with for Maharashtra specific. So this is going to be the game plan. And now we will go ahead with, okay. And fit youth body and you give them the proper training and they get a platform. सबसे बड़ी बात हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. जैसे मेरे से पहले वक्ता ने बोला कि कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई हम वी आर नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन प्रॉप्स. So the cricket bats and all, as the Gully Mola League will give, they are able to play in the same format as they play in the streets. They will get an impetus, a motivation कि हम एक स्पोर्ट्स खेलें, क्रिकेट खेलें. क्रिकेट से क्रिकेट के पहले ज़्यादा रुझान होगा. और ये इन्वेस्टमेंट जो है ये इसीलिए आई है कि इन्वेस्टर्स को अब सोशल इम्पैक्ट और आरओआई इस तरह से समझाई गई थी. अब आप पूछेंगे इसको मेजर कैसे करेंगे. सब हमें ये पूछते हैं कि आपने इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करी है, इफ़ इन्वेस्टर्स हैव कम रेडी कि दे वांट टू सी इम्पैक्ट, हाउ विल यू मेजर इम्पैक्ट. वी विल वर्क in close association with our Maharashtra team, with government agencies, with NGOs. So we will know कि एक particular area में कितने लोग ड्रग से addicted हैं. अगर उसमें से 1%, 2%, 3%, I am able to show on record that they have joined cricket and they made a life easier. It's one of the markers. Equity, diversity, we are the first ones, I believe, in Maharashtra Cricket League to also have a women's team. So diversity, inclusion, the same entire format, it's a structured format. Everyone will be given training, resources to actually rise in life. So to look forward to for a better tomorrow, you're much more motivated. कि अगर मुझे बाइट्स देने का मौका मिले, मेरे को प्रोत्साहन मिले, मेरे बारे में लोग सुने, मुझे बोलने का इजाज़त, मुझे हर जगह बुलाया जाए. This is how you shape young minds. Is actually this is what we feel directionless. हम AI में काम करते हैं तो उसमें एक डूम्सडे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई जाती है कि AI, AGI इतना एडवांस्ड हो रहा है आजकल. चैट जीपीटी को हमने 2 साल पहले देखा था. अब अगर इतनी एडवांस होगी तो जॉब्स चली जाएंगी. तो अगर जॉब चली जाएंगी तो लोगों को अगर इसके बारे में पता चला तो इट्स अ डीमोटिवेटिंग फैक्टर. हम ये समझते हैं कि हर चीज़ AI से इफेक्टेड होगी. स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो इससे इफेक्ट नहीं होगी, उसका इमोशनल कॉन्टैक्ट हमेशा रहेगा. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द बेसिस ऑफ मेकिंग अ फेयर सोसाइटी एंड अ बेटर सोसाइटी. जैसे कि हरमीत जी ने आपसे बताया, महाराष्ट्र पुलिस ने इस प्रोजेक्ट में और क्रेडेंशियल्स देखने के बाद, और आई थिंक 2-3 बार मीटिंग्स बाबा जी से रूबरू हुए, वो इनसे वो समझा, इनका पूरा पास्ट रिकॉर्ड उन्होंने क्रॉस चेक किया. दे वर एबल टू गेट कन्विंस्ड एंड दे हैव जॉइंड हैंड्स विद अस. इससे बड़ा हमारा लिए प्रोत्साहन, मोटिवेशन और क्या हो सकता है कि जैसे मेरे टीम यहाँ पे रिजवान भाई, इम्तियाज़ भाई मेरे साथ बैठे हैं, शशांक जी, सूरज जी, एंड महाराष्ट्र की जो सारी टीम मेरे साथ आई है, कुछ कैप्टन्स भी यहाँ हैं, और महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र की पुलिस ने हमारे साथ हमारा हाथ पकड़ा है. और जैसे कि उन्होंने कहा, खार जिमखाना में इसी बीच से पहले एक इनॉग्रल मैच भी होगा. ये हमारे लिए बहुत, हमारे लिए, देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए एक बहुत सराहनीय चीज़ है. इट्स वेरी कमेंडेबल. So this was my brief introduction. Now I'll request kindly to Baba Inderpreet Singh जी, सत्कर्मिक मिशन से जी. हम कलेक्ट हुए हैं नशा मुक्ति के लिए, ड्रग्स को हटाने के लिए. जो न्यू जनरेशन है, जो सबसे ज़्यादा, जिससे पूरा माहौल ख़राब हो रहा है, और हमारे बॉम्बे में बहुत सारी जगह है जो छोटे छोटे बच्चे ख़राब हो रहे हैं. अब उसने ये अभियान चालू किया है, ये कदम उसके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा, वो मोहल्ला क्रिकेट. जब हमारी अभी 4 दिन पहले पुलिस के आला अधिकारी से हमारी मीटिंग हुई खार में, तो जितने भी खार जिमखाना क्लब्स में जो स्टार किड्स वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे पहली लॉन्चिंग जो है वो 17, 18 और 20 तारीख से हो रही है, जिसकी ऑर्गेनाइज जो है वो हमारे जो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का GR है 17 से लेके और 25 तक नशा मुक्ति केंद्र का. हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मुंबई पुलिस इसको एग्जीक्यूट कर रही है. राइट. तो मुंबई पुलिस जो एग्जीक्यूट कर रही है वो आपके मोहल्ला क्रिकेट लीग के साथ कोलैबोरेट होकर पहली लॉन्चिंग हो रही है. पब्लिक होती तो मैं उसको ऑडियंस के लिए, क्लैप के लिए बोलता, लेकिन ठीक है. तो ये पहला लॉन्चिंग. थैंक यू वेरी मच. और एजेंडा जो है हमारा
मुंबई पुलिस का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीआर है कि महाराष्ट्र से नशा हटाया जाए बच्चों का, तो उनकी जो पहली लॉन्चिंग है खाद जिमखाना क्लब में, वो आपको डेट डिसाइड दी जाएगी। उस पर सबको दोबारा आपको इन्वाइट किया जाएगा। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब के ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है ये। तो ये हमारा जो एजेंडा है यहाँ पे कलेक्ट होने का, वो है नशा मुक्ति केंद्र। और मोहल्ला क्रिकेट क्लब में जब बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो नशा अपना आप छूटेगा। सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स है। तो मैं इनके लिए गिव देम अ बिग हैंड एवरीबॉडी प्लीज। तो अब मैं देश भर में हम इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, उसका तजुर्बा आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि किस तरीके से, चाहे आप उत्तराखंड में हो, चाहे आप पंजाब में हो, या चाहे आप शिवाजी नगर में हो, कहीं पर भी हो, मेजर प्रॉब्लम क्या है? मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि चाहे पहाड़ हैं तो उनके पहाड़ों के अंदर, उत्तराखंड के अंदर पहाड़, पंजाब में चले जाएँ तो पिंड बोलते हैं जिसको, विलेज, और अगर हम यहाँ पे आए तो धारवी या शिवाजी नगर जैसे ऐसे क्लस्टर्स एरिया। अब जो अभियान है, सबसे पहला नशा मुक्त महाराष्ट्र या नशा मुक्त पंजाब, इसका मेजर जो कॉज है वो ये है कि पहले जो इसके अंदर ड्रग पेडलिंग होती है उसमें 90% काम में अब लड़कियां और लेडीज़ इन्वॉल्व हैं। तो जो जेंट्स पहले पेडलिंग करते थे वो बाहर आ चुके हैं। दूसरा, पर डे जो भी बंदा इस काम में लगा रहता है उसको इससे इनकम आती है। तो आज अगर कोई किसी के ऊपर हाथ डाल के उसको पकड़ लेता है कि ये बंदा ड्रग की पेडलिंग कर रहा है और हम इसको पकड़ लें, ये काम रुक नहीं पाएगा कभी भी। ये इस वजह से नहीं रुक पाएगा क्योंकि हर घर के अंदर वो जो लेडी है या उसकी बेटी है, जो भी लोग लगे हुए हैं, 1000 रुपये से 5000, 10,000 रुपये की मंथली इनकम आती है उनके घरों के अंदर। अगर उनकी मंथली इनकम जिस काम से आ रही है वो ना करें तो उनका सर्वाइवल भी एक रीज़न है। तो अगर हम नशे के बारे में अवेयरनेस करें, कुछ करें, तो जब तक एक इनकम का सोर्स नहीं बनाते तब तक इस चीज़ के ऊपर लगाम नहीं रखी जा सकती। अब इनकम का ज़रिया बनाना प्लस उन बच्चों को इससे बाहर लाना, चाहे वो घर की बेटी हो या बेटा हो। तो अगर एक परिवार से एक बेटी या एक परिवार का बेटा बाहर आ जाता है तो वो पूरा परिवार और इनकम भी आ जाती है और साथ में करियर भी आ जाता है और साथ में फेम भी आ जाता है, पहचान बन जाती है। तो जिस बच्चे को मैं अपने घर के 5 या 10,000 रुपये के पीछे महीने में लगा रखा था कि बेटा तू ये काम कर, आज अगर उसकी पहचान बन रही है और उसको दुनिया देख रही है तो मेरा मान सम्मान उससे बन जाएगा। ये 5-10 हज़ार तो कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ की जब हम लोगों ने हर जगह अपने हाथों से काम करा, जैसे फुलकारी प्रोजेक्ट बताया पंजाब में करा, तो इसके अंदर एक और इशू आता था। अब देखिए, क्रिकेट इतना पॉपुलर है कि जिस तरीके से माँ बाप अपना सारी ज़िंदगी दांव पे लगा के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं कि हमारे घर में कुछ हो ना हो बट बच्चे हमारे पढ़े, इसी तरीके से आज जब से ये इतने सारे इंटरनेशनल लीग्स हो रहे हैं और स्पेशली 17 साल हो चुके हैं IPL को, हर घर में एक बच्चा ये चाहता है परिवार का कि भाई हमारे घर का एक बच्चा IPL के लिए भी खेले, चाहे स्टेट के लिए खेले या नेशनल के लिए खेले। ऐसे ही अब इंटरनेशनली हमारी जो वुमेंस टीम है वो भी टॉप लेवल पे पहुंच चुकी है। तो अब यहाँ पे ये बात अच्छी हो रही है कि सबको क्रिकेट का स्कोप पता है, किसको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि स्कोप क्या है। बट अब ये प्रॉब्लम आती है, जैसे हमने पंजाब में देखा, जब वहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुए तो कुछ ऐसे वहाँ पे बॉलर आए, जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो उनकी बॉलिंग बड़ी स्लो पड़ रही थी और ऑफ ट्रैक जा रही थी। बट जैसे ही उन लोगों ने अपने जूते उतारे और बॉलिंग करी, फर्स्ट क्लास यॉर्कर पड़ रही थी। अब सवाल ये आया कि भाई जब तुम शूज़ पहन के खेल रहे हो तो तुमसे बॉल नहीं हुई जा रही, और जब तुम नंगे पैर खेल रहे हो तो तुमसे बॉलिंग हो रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि आज जो बच्चे गली मोहल्ले में हर घर में क्रिकेट खेलते हैं और कहीं पे भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसकी पहली शर्त ये रहती है कि आओगे तो किट में आओगे। पर जब वो अपने गली मोहल्ले में चप्पल में खेल रहा है और सब खेल रहा है तो कैसे किट में आएगा? तो उसकी परफॉर्मेंस तो वहीं ख़राब हो जाएगी। तो वो जो बच्चा आज फॉर्मल ट्रेनिंग में है ही नहीं, दूसरा कहीं वो जाएगा मैं बड़ा अच्छा खेलता हूँ जी गली मोहल्ले में, कोई दुनिया उसको जानती नहीं। अब वो जाएगा जहाँ पे ट्रेनिंग लेगा, ट्रेनिंग के अंदर उसको पहले पैसे देने पड़ेंगे। तो जो अपना परिवार अपना ही पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है, वो उसको ट्रेनिंग के अंदर कैसे पैसे देगा? तो इसका हमने सिस्टम निकाला कि क्या करा जाए। तो ये जो प्रोजेक्ट आज लॉन्च हो रहा है, 10 साल से जो हमारी संस्था है ज़मीनी तौर पे काम कर रही हैं और 3 साल से हम इसके ऊपर रहे थे कि कैसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड आए। तो सबसे पहले हमने इसमें से लेदर बॉल हटा दी, क्योंकि जो बच्चा गली मोहल्ले में खेल रहा है और जो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल में खेल रहा है, उसके बाद वो कोचिंग भी ले रहा है, तो वो तो पहले ही ट्रेंड है।
आज उसके सामने आप गली मोहल्ले के बच्चों को उतार दो तो कभी लेवल प्लेइंग मैच ही नहीं होएगा। तो इसलिए टेनिस बॉल को हम लेके आए। टेनिस बॉल को लेने के साथ हमने उसके अंदर जो मेन क्राइटेरिया था किट, वो किट हटा दी। तो अगर तुम अपने गली मोहल्ले में नंगे पैरों में खेल पाते हो तो तुम यहाँ पर भी आओ और नंगे पैरों में ही खेलो। दूसरा, टेनिस बॉल का रखा है, आपको बैट और बॉल चाहिए, कुछ तुम्हारे पास ना हो, यहाँ पर आओ और खेलो। तो सारा इक्विपमेंट खेलने का भी हम दे रहे हैं। जो ग्राउंड है खेलने के लिए तो बॉक्स क्रिकेट के अंदर होएगा, वो बॉक्स क्रिकेट का हमने सारा बुकिंग करके वो वेन्यू भी हम दे रहे हैं। फिर जब हम लोगों ने यहाँ पर और बाकी स्टेटों में भी देखा तो ऐसे होता था कि समझ लीजिए 5 लाख रुपए की प्राइज़ मनी है, तो जो भी टीम रजिस्ट्रेशन करती है कम से कम उसका 10 से % वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस देते हैं। तो अगर मैं 5 लाख का अगर प्राइज़ मनी चाहिए तो पहले तो मेरे पास 50,000 होने चाहिए, तब तो मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा। अब मैंने रजिस्ट्रेशन करी, मैंने मैच खेले, मैच खेल के मैं प्राइज़ मनी ले आया और अब मैं घर में बैठा हूँ, तो वो तो एक इवेंट हो गया। बट सवाल है कि अगर हमें भूख लगी है तो हम अगर ताज में ना जाएं, हमें वड़ा पाव मिल जाए, हमें पार्ले जी मिल जाए, ऐसी भी तो चीज़ें अवेलेबल है। बट जो वड़ा पाव या पार्ले जी आज क्रिकेट से बाहर था, उसका हमने ईजाद किया। अब इसके अंदर प्राइस जो टीम की रजिस्ट्रेशन है वो है सिर्फ़ और सिर्फ 1100 रुपये। तो पहले टीम आए, अपने तो रजिस्टर करे और सिर्फ 1100 रुपये पे करे। मिनिमम 8 और मैक्सिमम 10 या 11 लोग रजिस्टर कर सकते हैं। अब एक टीम आउट कर दिया तो ये कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा बैट्समैन अच्छा है, बॉलर अच्छा है, फील्डर अच्छा है? तो इसके लिए एक टीम मिनिमम 10 मैच खेलेगी। अब जब वो 10 मैच खेलेगी तो जो भी बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा कम से कम 10 मैचों में तो नज़र में आ ही जाएगा। फिर एक जैसे शशांक जी हैं, ऐसे हमने एक क्रिकेट एक्सपर्ट्स का बोर्ड बनाया। अब इनको बोला हर बंदा तो मैच पे जा नहीं सकता, तो हमने इसको बोला कि ये मैच लाइव यूट्यूब पे चलेगा और जो भी मैच ख़त्म होएगा उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी। तो जो एक्सपर्ट की टीम है उसके सामने हर मैच अवेलेबल रहेगा, वो उसमें से शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा अच्छा खेल रहा है, क्या कर रहा है, तो उसका एक रिकॉर्ड बन जाएगा। अब अगर एक बच्चे ने सिर्फ 100 रुपये दिए और उसने सिर्फ 10 लीग मैच ही खेले तो पर बच्चे की कॉस्ट 10 रुपये, और ना उसको 10 रुपये के अंदर 10 मैच खेलने का मौका मिल रहा है। हर बार उसको ग्राउंड का कोई खर्चा नहीं करना, कुछ नहीं करना, 10 रुपये दो और जो तुम इतने सालों से ख्वाहिश लेके बैठे हो दिल में, आके यहाँ पे क्रिकेट खेलो। 10 मैच। तो इसलिए गली मोहल्ला क्रिकेट इजाज़ करा जाएगा। दूसरा, प्राइज़ मनी रखी गई इसकी 11 लाख रुपए पहली टीम के लिए जो स्टेट से आएगी, और दूसरी टीम जो आएगी उसके लिए 5 लाख। तो अगर मैं 10 रुपये दे के खेल रहा हूँ तो कम से कम मेरे सामने 1 लाख रुपए हैं। तो वो 1 लाख का प्राइज़ अमाउंट 10 रुपये के हिसाब से भी काफ़ी है, तो 11 लाख का प्राइज़ अमाउंट रखा। उसके साथ में अब आज तो हम यहाँ पर बैठ के इसको लॉन्च कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास 300 टीमें ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं। 300 टीमें आके अब 1100 रुपये देंगी और 11 लाख लेंगी और सिर्फ 10 रुपये देंगी। अब जो ये टीमें जीतेंगी इनको हम 1 साल के लिए ट्रेनिंग देंगे, तो उसको फॉर्मल ट्रेनिंग के अंदर लाने के लिए वो बेड़ा हम उठाएंगे, जिसके लिए शशांक जी यहाँ पे वो आपको डिटेल देंगे बाद में। अब जब वो बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है तो जो पहला सवाल था कि जो नशे की ट्रैफिकिंग में है उसको तुमने पकड़ लिया और फिर वो घर के अंदर 5 से 10 हज़ार रुपये ला रहा है, तो माँ बाप कहेंगे कि हमारे बेटे को तुम वहाँ ले गए तो हमारे घर में इनकम नहीं आ रही, तो उसको हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाएगा ताकि घर के अंदर 5,000 से 10,000 जाते रहे जब तक बच्चा वहाँ तैयार हो रहा है। दूसरा, ऐसे बच्चे होंगे जो पहले 10 मैचों में ही आउट हो जाए उनकी टीम, तो इसके अंदर जो ये एक्सपर्ट्स की टीम हमारी है वो बैठेगी और वो ये देखेगी कि चाहे वो बच्चा 10 मैच में टूर्नामेंट से बाहर हो गया बट उसमें प्रतिभा थी, उसको भी हम स्काउट करके अपने ट्रेनिंग सिस्टम में लाएंगे। तो ऐसा होएगा जब तक लीग ख़त्म होगी तब तक पहुँचते पहुँचते 100-150 बच्चे तो ऐसे ही आ जाएंगे, चाहे वो टीम जीते या ना जीते। और 11 बच्चे रजिस्टर्ड हैं तो 5,500 बच्चे पर स्टेट से हमारे पास आएंगे, तो 9 स्टेट और उसके साथ में हमारे पास 5,500 बच्चे पर स्टेट। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ तो करीबन 45 से 50 हज़ार तो बच्चों को ही मौका मिल जाएगा खेलने का, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं है। उसके बाद जो टीमें आती रहेंगी वो फिर
अपनी स्टेट के बाद जो बाकी 9 स्टेटों में मैच हो रहा है उनके साथ खेलेंगे, तो हर जगह पे ये सिस्टम चल जाएगा। हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 हफ्ते पहले ये लॉन्च करा, और उसको लॉन्च करने के बाद अब यहाँ पे आज महाराष्ट्र का लॉन्च कर रहे हैं। साथ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी इसकी, gmcricketleague.com, वो लाइव है पोर्टल, कोई भी बच्चा जाके वहाँ पे आज रजिस्टर कर सकता है। फिर हम इसके अंदर यूनिक चीज़ लेके आए कि बच्चे कहाँ पे खेलेंगे, तो बच्चों की रजिस्ट्रेशन होगी पिन कोड से। तो जैसे जो भी हमने जोन बताए हैं, तो बच्चा जाएगा और वहाँ डालेगा महाराष्ट्र, जोन सेलेक्ट करेगा जैसे थाने, और फिर उसके अंदर डालेगा अपना पिन कोड। तो पिन कोड बाय पिन कोड टीमों की रजिस्ट्रेशन होती रहेगी। तो पहले वो अपने जोन में भी खेलेंगे और फिर जो बाकी के जोन है उसमें भी खेलेंगे। तो उस बच्चे को एक झटके में पूरे जो ये 4 जोन फेज़ 1 में बनाए गए हैं उसको मौका मिल जाए। अब जहाँ ये 40,000 मैच अगले 6 महीने के अंदर ये 9 स्टेटों में ऑन ग्राउंड होने जा रहे हैं, 55,000 बच्चे डायरेक्टली इन लीगों में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और अगर हर बच्चे का एक 4 भी बच्चे परिवार वाले साथ में जुड़े हैं तो 2 लाख से 2.5 लाख डायरेक्ट फैमिलीज इस सिस्टम के अंदर आ जाएंगी। तो इस मुहिम के साथ ये पूरे क्रिकेट लीग का बेस बनाया गया हम लोगों ने। तो इसके साथ में अब क्योंकि हम बॉम्बे में बैठे हैं, महाराष्ट्र में बैठे हैं, तो सारे के पीछे यहाँ पे IPL को सब जानते हैं, तो उसकी वैल्यूएशन भी जानते हैं कि आज IPL कहाँ खड़ा है। तो अगर मैं उसके हिसाब से आपको इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से समझाऊँ कि आज हम लोग कहाँ खड़े हैं, तो पर स्टेट 500 टीम एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100 मैच, मतलब मल्टीप्लाइड बाय हर टीम के 10 मैच, तो मिनिमम आपके हो गए 5,000 मैच पर स्टेट। 5,000 मैच पर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय 9 स्टेट। सुद्धा व डायस कमिटीचे सगळ्यांचा मी आभारी आहे। त्यांनी माझ्या आमच्या ब्रह्मपुत्र सोशल फाउंडेशनचा मी डायरेक्टर त्याला सोबत घेतलं आहे, त्याच्याबद्दल मी कोर कमिटीचा आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद करतो। आणि झोन्स आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 4 झोन्स आता सिलेक्ट झालेले आहेत, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि रायगड, कोकण। तर ह्या झोनमध्ये परत सब झोन्स तयार होतील। जशा टीम वाढत जातील ज्या एरियामध्ये, त्या एरियामध्ये आपण त्या मॅचेस तिथे कंडक्ट करू। एका झोनला 100 टीम्स असतील, असे 5 झोन किंवा 4 झोन्समध्ये आपण ते कन्वर्ट करणार आहोत। पण त्याच्या व्यतिरिक्त वाढल्या मॅचेस तर अजूनही झोन्स वाढतील आणि ते झोन वाढवायची पण क्षमता त्यांनी सांगितलेली आहे की आम्ही करणार आहोत। फक्त मुलं आली पाहिजेत आणि आपलं कन्सेप्ट एकच आहे की ड्रग्स पासून किंवा नशामुक्त हे झालंच पाहिजे मुलं। आणि आपण मुलांना ट्रेनिंगमध्ये पण तेच देणार आहोत की सगळ्यात पहिले डिसिप्लिन आणि खेळाची आवड तर सगळ्यांनाच असते, पण जो प्लॅटफॉर्म भेटतोय तो गल्ली मोहल्ला क्रिकेट टीममधूनच भेटतोय आणि तो कोणीच देऊ शकत नाही। खूप लोक आहेत मुंबईमध्ये, खूप मोठमोठी लोक बसली आहेत, पण कोणी गल्ली मोहल्ल्याच्या मुलांसाठी काय करत नाही। तर गल्ली मोहल्ला टीम आणि हा सगळा कोर डाय सिटी आहे, तर त्यासाठी मी पुन्हा एकदा सगळ्यांचे धन्यवाद करतो, मीडियाचे सुद्धा धन्यवाद। जोन के नाम खेलेगी, यानी अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है तो 10 बार देखने को मिलेगा, उसको 10 बार चांस मिलेगा। He get chance to play for प्राइस 11 लाख, 10 times. तो 11 से 2 11 लाख लो और आए। कन्सेप्ट काय असतं की तेवढी कॅपॅसिटी नसते की आम्ही टर्फमध्ये खेळू, तर ते आता जेव्हा टर्फमध्ये येतील तेव्हा त्यांच्यासाठी ते नवीन असेल, वातावरण नवीन असेल, तर त्यांना ते 1-2 मॅचेस खेळायला थोडासा प्रॉब्लेम होईल आणि नंतर मग त्यांचा टॅलेंट ऑटोमॅटिक बाहेर येईल आणि तो टॅलेंट हँड गली मोहल्ला क्रिकेट क्लब। मोटा पैसे दो। देखिए क्या होता है ना है, नहीं आपको? सुनिए ना, सुनिए, इसका जवाब देता हूं, मैं देता हूं। जब आप जाते हैं ना ये अपना VIP लॉन्च में, हम लोग जाते हैं एयरपोर्ट में, तो उसमें जो VIP लॉन्च होता है उसका जो बुफे होता है उसकी कीमत होती है 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, लेकिन 2 रुपये स्वैप करना बहुत जरूरी होता है। आपको पता होगा सबको, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में 2 रुपये स्वैप, 2 रुपये देना 2 रुपये देना होता है। तो 2 रुपये का मतलब ये है कि उनका बैंक से टाई अप है, तो 2 रुपये का कम से कम, अब 10 रुपये बच्चा ही नहीं दे सकता अब इतना, तो ये तो आप अंडरस्टूड बात हो। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप जरा थोड़ा सा हाईलाइट करना है इस बात को, ये जो नशा है वो कहाँ है, स्लम ज़्यादा है, स्लम एरिया में ज़्यादा है। तो हमने यूनिफॉर्म, इतनी यूनिफॉर्म में ये यूनिफॉर्म इज नॉट ए मैंडेटरी। जो आप अपने घर के कपड़े पहन के मोहल्ला गली कैसे खेलते हैं, मोहल्ला गली में रात को टेनिस पे, ऐसे ही वो, क्योंकि पैसे कहाँ से लेके आएगा, 1100 रुपये तो यूनिफॉर्म में बनाने के पैसे भी लगेंगे टीम को। तो मोहल्ला क्रिकेट लीग में जो बच्चा रात को या दोपहर को खेलते हैं, उसी तरीके से अगर उसकी पैंट भी हाफ है या फटी हुई है, हर चीज़ में एंट्री होगी।
आ जाओ। अगर चप्पल भी नहीं है उसके पास नंगे पैर में, क्योंकि सलम जो है वो यूनिफॉर्म में भी तो पैसे लेंगे ना, 1000 रुपये 11 लोगों के, 100 रुपये की तो शायद आती हुई जर्सी, तो 1000 का वो खर्चा होगा, वो भी नहीं करना है। तो उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उसको अपनी विदाउट यूनिफॉर्म भी वो आके खेल सकता है। आपने इंदर भाई आज जो स्टेट है उनके नाम नहीं बताए। हाँ, जो मैं आज उसके अंदर 9 स्टेट्स, 9 स्टेट्स। हाँ, तो इसमें एक दिल्ली है, महाराष्ट्र, उसके साथ में पंजाब, उसके साथ में गुजरात की भी टीम आएगी, गुजरात की भी हम लोगों ने वहाँ पे भी स्टार्ट कर रहे हैं। आशा गायकवाड़। हाँ, तो उसमें आपने यहाँ देखा होगा शायद, पता नहीं चलाया जी, तो आशा राजे गायकवाड़ मैम है जो बड़ौदा की रानी है, तो नेपाल के अंदर ये लीड वो करवा रही हैं। उन्होंने